اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جبرائیل علیہ السلام کا بیان بناؤں گی۔ جبرائیل علیہ السلام کا 600 پروں والا ایک فرشتہ، 1.25 لاکھ پیغمبر تک پہنچا دینے والے، تمام نبیوں کا معلم مددگار بننے والے، وہ جبرائیل علیہ السلام۔ فرشتہ جبرائیل کی تعریف کیا ہے؟ جبرائیل معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے جا کے کیوں رک گئے تھے؟ ہم اس ویڈیو میں فرشتہ جبرائیل کے اس حقائق کو پیش کریں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گے۔ میری ماں اور بہنوں، بحیثیت مسلمان فرشتوں پہ ایمان رکھنا ہمارا ایک ایمان کا حصہ۔ ہر ایک مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پہ اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر۔ آسمان میں فرشتہ پہ رہنے والے بابرکت ایک ایسی مخلوق ہے جو خطا سے معصوم پاک ہے۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی، اللہ نے ان کی تخلیق نور سے کی۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے آیت مفتی ذمہ داری نبھاتے ہیں، مختلف ذمہ داری پہنچاتے ہیں۔ انہی فرشتوں کے ذمے ہے تمام پیغام پہنچانا۔ ان تمام فرشتوں میں سے 4 مشہور فرشتے ہیں جن کے نام حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار اور سب سے بہتر ہے۔ روایتوں کے مطابق فرشتوں کے 12 قبائل، ہر قبیلوں میں زمین کے ذرہ برابر ہے، بہت زیادہ تعداد ہے۔ عرش الہی کے 6 لاکھ پردے ہیں جن کے ارد گرد فرشتے ہمیشہ گھوما کرتے ہیں۔ ہر پردے کے اس طرح کے فرشتے جس طرح دریا میں قطرے، ان کی صحیح تعداد کو صرف اللہ کو علم ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ جبرائیل کے معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہے۔ میکائیل کے مطلب عبید اللہ، اسرافیل کے معنی عبد الرحمن ہے۔ دراصل یہ ہر لفظ ہے جو علم کے ساتھ مستحلق ہو، وہ اللہ کا عبادت کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقام آتا ہے جبرائیل علیہ السلام کا۔ بعض جگہ ان کو روح القدس اور روح الامین بولا جاتا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور یہ سجدہ تقریباً 30,000 سالوں کی مدت میں ختم ہو۔ جبرائیل علیہ السلام جب سجدے سے سر اٹھائے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا ہے اور تمام خواہشات، نفسیات، جسمانی بیماری، سب چیز سے تم کو بری رکھا ہے۔ تم کو کوئی بہکانے والا اور راہ سے بھٹکانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کی پاکی کا انتظام کچھ ایسا کیا گیا ہے کہ جنت میں ایک نہر تعمیل ہوئی جس میں جبرائیل علیہ السلام داخل ہو کر غوطہ لگاتے ہیں اور باہر آ کے اپنے پر کو جھاڑتے ہیں۔ غوطہ لگانے کے بعد جتنے قطرے ان کے پروں سے گرتے ہیں، اللہ ہر قطروں سے ہر ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اگر ایک پر پھیلا دے تو آسمان کے کنارے پورا چھپ جائے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیے تھے کہ زمین پہ جاؤ اور جا کے مٹی لے کے آؤ تاکہ میں اس سے آدم کو تیار کیا جائے۔ لہٰذا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے فرشتے کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت سب سے پہلا سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ان کے بارے میں حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سجدہ کیے۔ لہٰذا سب سے پہلے کرنے والے جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کے مدد کرنے والے معمول فرمایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام نے 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم پر 42 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام کے 13 مرتبہ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے ہیں۔
तमाम अम्बिया इकराम के सीरत में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक अहम किरदार रहा है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अजीम तूफान से पहले कश्ती बनाने का इरादा किया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जिन्होंने आपको कश्ती बनाना सिखाया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाला तो उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से आग में गुलजार बना दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके भाइयों ने कुओं में फेंक दिया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के तेज़ रफ्तारी से कुएं के अंदर गए और हज़रत यूसुफ को अपने परों में थाम लिए, नेज़ कुएं में उन्हें हौसला दिए कुओं में। और जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के यहाँ नूह मेहमान बन के ठहरे उनके घर में घर का घेराव करे तो उन लोगों के मुंह पर अपने यूं पर मारा कि सारे लोग अंधे हो गए। उस वक्त कौमे लूत का इलाकों में अपने परों पे उठा लिए जो 5 शहरों पे मुत्तहद थी और उसने ज़मीन पे पटक दिया। जब जकरिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से औलाद की दुआ मांगी तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत जवान के शक्ल में आए और उनके नेक और सालेहा खुशखबरी दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश में जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कलमाए कुल से हुई। मुख्तसर ये कि पैगम्बर के बाक़ियात में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ऐसा किरदार है गोया आपने दुनिया की पूरी तारीख को बदल डाला। तमाम नबियों के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आते थे, लेकिन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल को उनके असली हालात में देखा है। जिब्राईल अमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मुलाकात का वाक़या नहायत दिलचस्पी है। दरअसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई पसंद थी। आप गार हीरा में इबादत किया करते थे, लिहाजा एक दिन गार में इबादत में मशहूर इस असना में आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फरिश्ता है और कहा पढ़ो। आपने कहा मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ते ने कहा सख्ती से दबा दिया, फिर छोड़ दिया और फिर कहा पढ़ो। फिर हुजूर अल्लाह के नबी ने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। फिर फरिश्ते ने दूसरी मर्तबा दबाया, फिर छोड़ दिया और फिर कहा पढ़ो। हुजूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। तीसरी दफ़ा उस फरिश्ते ने आपको फिर पकड़े और कहा अपने उस परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने इंसान को पैदा किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी घर वापस आए। आपका दिल लरज़ रहा था। आप अपने ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और कहा मुझे कंबल ओढ़ा दो। लिहाजा उन्होंने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपकी घबराहट कुछ कम हुई तो आपने हज़रत खदीजा को सारा वाक़या बता दिया। इसके बाद हज़रत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आप बरका बिन नौफिल के पास चचा भाई के पास लेके। बरका उनको में से लोग थे अहले मक्का के सिर्क बुत परस्ती को बेजार होकर नसरानी हो गए थे और इंजील का अबरानी ज़बान से अरबी में तर्जुमा करते बहुत बूढ़े नाबीना हो चुके थे। हज़रत खदीजा ने उनसे कहा कि भाईजान आप अपने भतीजे का बात सुनिए। ज़रका बिन नौफिल ने कहा बताइए क्या आपने क्या देखा। हुजूरे ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे गार का वाक़या फरमा दिया। इस गरफा बिन नौफिल ने कहा ये तो वही फरिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा के पास भेजा था। फिर बरका बिन नौफिल कहने लगे कि काश मैं आपके ऐलान नबूवत के ज़माने में रहता, काश उस वक्त मैं ज़िंदा रहता जिस वक्त आपकी कौम जब आपके मक्का से बाहर निकालेगी। जब इस बात सुन के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मक्का वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे, तो बरका ने कहा जी हाँ, जो शख्स भी जो आपके नबूवत लेके आएगा लोग उसके साथ दुश्मनी कबर बस्ता हो जाएंगे। वो फरिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हामिद मददगार बने। नबी की हिजरत हो, जंगे बदर हो, मिराज का सफ़र हो या कोई और मौका हो, हर मौकाम पर जिब्राईल अली ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिए। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम अक्सर एक खूबसूरत नौजवान के शक्ल में दहिया कलमी के शक्ल में आपके पास आते थे और अल्लाह का पैगाम सुनाते थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल से फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा असल सूरत देख सकूँ। उन्होंने अर्ज़ की कि आप एक खुला फला तारीख को मुझसे आकर मुलाकात कीजिए। लिहाजा आप उस दिन तशरीफ़ ले गए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने परों से एक पर फैला दिए जिससे आसमान का पूरा भर गया, आसमान पूरा, यहाँ तक कि आसमान की कोई चीज़ नज़र नहीं आने लगी। एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा ऐ जिब्राईल जरा ये तो बताइए कि आपकी उम्र कितनी है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको जवाब दिया या अल्लाह के नबी मुझे अपनी उम्र का सही इल्म तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना
पता है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह की हिजाबात में से चौथे पर्दे में एक सितारा चमका करता था। अब वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में से वो सितारा 72,000 बार देखा है। इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से कहा, ऐ जिब्राइल, मुझे अपने रब की इज्जत की कसम, वो सितारा मैं ही हूँ। इस रिवायत को अली बिन बुरहान ने अपनी किताब में सीरत हलबिया में नकल किया, लेकिन इसकी कोई सनद नहीं मिलती। लेकिन अक्सर उलमा इसे मौजू करार देखते हैं। उलमा लोग, अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बेखुसूसियात दिए थे, बेहद ताकत से नवाजा है, इसकी भी कुछ हदूद है। लिहाजा मेराज की रात जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहीं पे रुक गए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह कि मैं यहाँ से नहीं आगे जाऊँगा, तो एक उंगली के बराबर में आगे बढ़ूंगा तो मैं जल कर खाक हो जाऊंगा। इंजील और तौरेत में गब्रील के नाम से जिक्र किया गया। किताब दानियाल और मूका में हज़रत जिब्राइल के मुताबिक तफसीली जिक्र है। मशहूर फ़लसफ़ी हज़रत जिब्राइल के ज़ात के मुताबिक अपनी तहरीर में एक लंबी बहस की और ये साबित करने की कोशिश की कि हज़रत जिब्राइल देगर की तरह नहीं, मतलब उनको बहुत अकल है, जिसकी कैफियत मुहावरा जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ वो सलाहियत एक आम फरिश्ते के अंदर मौजूद नहीं है। आम फरिश्ते के अंदर उतनी सलाहियत मौजूद नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मैं कुछ वाक़यात ली हूँ, कुछ बयान बनाई हूँ, इसको देखिए, आई होप पसंद आएगा इंशाअल्लाह।